आप इशारा कर रहे हैं ना। Good morning friends, myself Vishnu Narayan Saxena. I am going to present my topics computer network topology. I am from Ujjain Polytechnic Ujjain and my topic is computer network topology. So the general object of this session will be the student will be able to understand the concept of computer network topology, and my specific objects are student will be able to explain the classification of different topologies. First object. Second one is student will be able to compare different topologies. Third one, student will be able to define different terms like hub, workstation, link and port. So first question is that what is computer network topology? Do you have any idea, any one of you, what is computer topology? Connecting the different computers for sharing their data, etc. Anyone else? A little bit idea of computer network topology. So the definition of computer topology is defined as logical and physical connectivity of more than two computers. It is physical as well as logical connectivity between more than two computers. So what is physical connectivity and what is logical connectivity? Physical connectivity means the shape of cabling layout used to link device is called physical topology of the network. How they are connected physically. So this is called physical connectivity. How these are connected physically. Okay. And logical connectivity means, the logical topology means is the way that data passes through the network. How data moves from one device to another device. Again, a network logical topology is not necessarily the same as the physical topology. I would like to make it clear with the help of example. Suppose I move a paper from this position and just say to you, just sign it. Physical means this is number 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7. Okay? And logical, if I told you that sign it according to alphabetical order, then it will be logical. A person which name is Akash, it will come first, no matter where he sits. Okay? So this is called logical, means how data will move in a network from one device to another device. Okay? So again, a good question, why computer network? Why we need to connect more than two devices in a network? Okay? So there are two reasons. One is information sharing and second one is resource sharing. Suppose we want to share information which is at one computer with a people which is at second computer. So we do require computer network. Another one application is computer network resource sharing. Resource sharing means आपने देखा होगा कि लैब में भैया एक प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं. आप चाहते हो कि 10 कंप्यूटर में से कोई भी प्रिंट आउट दे पाए. एक ही प्रिंटर है हमारे पास और 10 कंप्यूटर से हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट मिल जाए. आपने साइबर कैफे में देखा होगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग. हियर वी आर शेयरिंग अ प्रिंटर बिटवीन 10 कंप्यूटर्स. ओके, so these are two applications of computer network. Again, classification of network topologies. So first is mesh topology, star topology, bus topology, ring topology and tree topology. Okay, this is example of bus, star, tree, ring, mesh. Now I would like to discuss one by one. This is mesh topology. Okay, so how one can define mesh topology? This is figure of mesh topology. Okay, there are 6 computers and each one is connected to another one computer. Means there is a dedicated link between any two computers. This computer is connected to that computer with the help of dedicated link. Similarly, this computer is connected to this computer with the help of dedicated link. So mesh means what? There is a dedicated link between any two devices. Okay? There is a dedicated link between these two devices. Now it's time to discuss about the advantages and disadvantages of mesh topology. Okay?
So mesh topology means in mesh topology there is a dedicated link between each pair of device in the network. There is a dedicated link between each pair of device in the network. So now discuss the following parameter. What about the speed? Speed कैसी होगी mesh topology में? Means there is a dedicated link. Fastest मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि क्या यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक है. ओके, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. व्हाट अबाउट रबस्टनेस? रबस्टनेस क्या होता है? रबस्टनेस एक क्वालिटी है. अगर आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं उसमें से कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए, सपोज दैट, तो उसका इफेक्ट अदर कंप्यूटर्स पे कैसे पड़ेगा? अगर पड़ता है तो हम कहते हैं उस नेटवर्क में रबस्टनेस नहीं है, ठीक है. और अगर नहीं पड़ता तो हम क्या बोलते हैं? रबस्टनेस है. तो मैश टोपोलॉजी में क्या होगा? रबस्टनेस क्या होगी? हाई और लो? हाई होगी. अगर कोई एक डिवाइस अफेक्टेड होती है तो बाकी डिवाइसेस उससे अफेक्टेड नहीं होंगी, बिकॉज देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिवाइसेस. ओके. थर्ड पैरामीटर इज सिक्योरिटी. व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? हाईएस्ट. Again the same reason, because there is a dedicated link between each pair of devices. कोई भी डेटा ए डिवाइस से सपोज बी डिवाइस के बीच जाना है. सपोज ए कंप्यूटर है, there are 3 computers. Each one is connected to another one. This is suppose 1, this is 2, and this is 3. Suppose 1 want to communicate with 3, तो ये डेटा कभी भी 2 नंबर के कंप्यूटर को लीक नहीं होगा. क्लियर? और सपोज सेकंड नंबर का कंप्यूटर फर्स्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये डेटा कभी थर्ड को लीक नहीं होने वाला. हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी इज देयर. ओके. अगेन फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड. सपोज इसमें हम फोर्थ नंबर का एक कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं. दिस इज आवर मैश टोपोलॉजी एंड वी वांट टू ऐड fourth number of computer here. So how much input output port required here? 3. अब सपोज इसमें 5वें नंबर का कंप्यूटर ऐड करना है तो उस 5th नंबर के कंप्यूटर में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होने चाहिए? 4. मींस इट डिपेंड्स कितने कंप्यूटर्स हैं. सपोज n कंप्यूटर्स हैं तो कितने पोर्ट्स होने चाहिए? n-1. दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मैश टोपोलॉजी. आप इतने सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहां से लाओगे? दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. इतने सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट? कॉस्ट तो बहुत सारी होगी इसकी. कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे और बहुत सारे लिंक्स यूज होंगे. ओके. अगेन सेकंड वन इज स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? In star topology there is a central hub. This is central hub. इस central hub से सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है. जो भी कम्युनिकेशन होगा इस central hub के थ्रू होगा. ओके. Suppose this computer want to communicate with this computer, so data will move through this hub. Okay. Suppose this computer want to communicate with this computer, so data will move through this hub. डेटा हमेशा उस हब के थ्रू ही मूव होगा, ठीक है. डेटा हमेशा हब से मूव होगा. तो इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? अगर हम उन्हीं पैरामीटर्स को लेके चलें, ठीक है. सबसे पहले स्पीड की बात करें. स्पीड क्या होगी? मैश के कंपेयर में स्पीड क्या होगी? स्लो. मैश के कंपेयर में थोड़ी सी स्लो होगी, बिकॉज देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक बिटवीन एनी 2 कंप्यूटर्स, ठीक है. सारा डेटा किसके थ्रू पास होगा? हब के थ्रू. तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है. सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें. स्पीड के बाद क्या आया था अपना पैरामीटर? ओके. सो इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल हब एंड ईच डिवाइस in a network is connected with each other through this central hub. So first thing is speed, of course, as slow as compared to mesh topology. What about robustness? अगर हमारा सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा. अगर सेंट्रल हब के अलावा और किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा?
उस लिंक का कम्युनिकेशन खाली अफेक्टेड होगा, बाकी और तो कोई भी कम्युनिकेशन अफेक्टेड होने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ रबस्टनेस है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी वो थोड़ा सा लो है। ओके, मैश टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसका रबस्टनेस थोड़ा सा कम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होगी इसकी? लेस होगी एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। इसकी सिक्योरिटी कम होगी क्योंकि कोई भी डेटा है वो हब से होके आ रहा है। अगर हब पे हम अटैक करें तो डेटा स्टोलन हो सकता है, मतलब वो डेटा चोरी हो सकता है। तो उसकी सिक्योरिटी क्या है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी? कम है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड। अगर हम इसमें कोई नई डिवाइस कनेक्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में सपोज हम कोई न्यू डिवाइस कनेक्ट करते हैं, दिस वन इज अवर सेंट्रल हब एंड दीज आर एंड डिवाइसेस। दिस इज योर हब, ए डिवाइस, बी डिवाइस, सी डिवाइस, डी डिवाइस। तो इजी होगा मेरे ख्याल से कनेक्ट करना। आप इसमें नई डिवाइस कोई कनेक्ट करना चाहोगे मेरे ख्याल से इजी होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स प्रोपोर्शनली में नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप एक कंप्यूटर आपको नया कनेक्ट करना है, आप सीधे सीधे उसे किससे कनेक्ट कर सकते हो? हब से। एक न्यू डिवाइस आप इसमें इजीली इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, जो कि मैश टोपोलॉजी में आप कोई भी एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इसमें आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस करा सकते हो और इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट। कॉस्ट इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट मैश टोपोलॉजी के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स उतने नहीं चाहिए हमें। ठीक है। और जो लिंक्स हैं, लिंक भी हमें उतने नहीं चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे डिस्कस करें। टाइम ओवर। You just give the warning, no? At 10 रुक minutes. जा यार थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेट करो बेटा। बस टोपोलॉजी पे बात करें अपन, है ना। बस टोपोलॉजी में क्या होगा? एक डेडिकेटेड बस है जिसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं और इस कोएक्सियल केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ठीक है। इस पे हम डिस्कस करें भाई इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड इसकी मैच से कम होगी और डिपेंड्स करेगा एंड लोकेशंस क्या है, किस नंबर का कंप्यूटर किस नंबर के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट रबस्टनेस। रबस्टनेस फिर क्या होगा? रबस्टनेस में डिपेंड करेगा किस कंप्यूटर में खराबी आई है। ओके, पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि हाईएस्ट रबस्टनेस है, पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कम रबस्टनेस है। सिक्योरिटी कम होगी, नो डाउट कम होगी, क्योंकि एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम से आपने सारी डिवाइसेस कनेक्ट की हुई है। लेकिन इसका फायदा सबसे बड़ा क्या है कि आप इजीली किसी भी डिवाइस को इंसर्ट करा पा रहे हो नेटवर्क में। आप एक नया कंप्यूटर जोड़ना चाहते हो, बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो उसमें, और इसकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी थोड़ी सी। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी की बात करें। रिंग टोपोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट, दूसरा कंप्यूटर थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, एंड लास्ट कंप्यूटर इज अगेन कनेक्टेड टू फर्स्ट कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड रिंग। If last computer is connected to first one, then this is called ring topology. So again, it's time to discuss the advantages and disadvantages of ring topology. तो easy है डिस्कस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रिंग टोपोलॉजी में? अगर आप इसमें नई डिवाइस इंसर्ट कराओगे तो मेरे ख्याल से एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इट इज टफ टास्क। आप रिंग को अलग करके फिर से जोड़ रहे हो, या बीच में आप नहीं करा सकते इंसर्ट, आप लास्ट डिवाइस के बाद इंसर्ट कराओगे, है ना। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर सकते हैं। अगेन ट्री टोपोलॉजी थोड़ा सा कंक्लूड करो। Yeah, you can very quickly. ओके, दिस इज ट्री टोपोलॉजी। अगेन इट्स स्ट्रक्चर लाइक ट्री। आप ब्रांचेस में जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ये सारे पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो इजीली। Again, what do you think which one is best and why? This is question for you. Okay, which one is best and why? आपको उसका रीजन मालूम होना चाहिए। मीटिंग all of you know this question. Any question? Thank you. Thank you. Let us have big hands. Good. We have presentation. Yes, sir.